So good morning everyone. Today we are going to start a new chapter, that is working of the United Nations. Previous chapter we studied about the birth of the United Nations, means how and when the United Nation was formed. So in the previous chapter we learned about the aims and objectives of the United Nations. In this chapter let us see how the UN works. Okay. Now, organs of the United Nations. There are 6 main organs of the United Nations. They are General Assembly, Security Council, Secretariat, Economic and Social Council, Trusteeship Council, and International Court of Justice. So, first is the General Assembly. General Assembly is the main body of the of the United Nations, and it is like an international parliament. Okay. Each country has one vote, so each member nation has one vote. It is a platform for the member countries to put forward their ideas and issues. So in the General Assembly, the member nations, they put forward their ideas and opinions in front of the other member nations. The annual meeting of the General Assembly is held in September. So every year in September, annual meeting is held of General Assembly. However, in case of an emergency, a special session can be held. In case if there is any urgent, if there is any urgent case, if there is any emergency, then a special meeting is held. The meetings of the General Assembly are presided over by the Secretary General. So the Secretary General conducts the meetings of the General Assembly. Decisions are taken by majority vote. Okay, so there is a voting system. So one whose decision is voted in majority, those decisions can be implemented further. So वहाँ पे voting system होता है. तो जिस किसी भी डिसीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, उस डिसीजन को आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है. However, important decisions require 2/3 majority. लेकिन जो बहुत important decisions होते हैं, ऐसे decisions को at least 2/3 majority of votes चाहिए होते हैं. It is a General Assembly which admits new members. General Assembly में ही जो new member nations होते हैं, जो new member countries होते हैं, उन्हें introduce किया जाता है. It also makes the annual budget of the UN. General Assembly में ही जो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट होता है, मीन्स हाउ मच मनी हैज़ टू बी इन्वेंटेड वेयर, ठीक है, कहाँ पे कितने पैसों की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, तो ये जो बजट का काम होता है ये भी जनरल असेंबली में ही किया जाता है. Now next is the Security Council. The Security Council is the most powerful organ of the United Nations. Security Council United Nation का सबसे powerful organ है. It is the responsibility of the Security Council to maintain international peace and restore peace in areas of conflict. तो Security Council की ये responsibility होती है कि जितने भी nations हैं, जितने भी countries हैं, वो आपस में एक peaceful relation maintain करके रखें. The Security Council has 15 members. Security Council में total 15 members होते हैं. 5 of them are permanent members. So इन 15 members में से जो 5 members होते हैं वो permanent members होते हैं, और बाकी के जो 10 members होते हैं वो temporary members होते हैं, जिन्हें सिर्फ 2 years के लिए अपॉइंट किया जाता है. The remaining 10 members are elected by the General Assembly for a period of 2 years. तो जो 5 मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं वो जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है. बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं उन 10 मेंबर्स को जनरल असेंबली ही टेम्पररीली अपॉइंट करती है सिर्फ 2 इयर्स के लिए. सो उसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं, बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं वो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, और उन 10 मेंबर्स को जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है सिर्फ 2 इयर्स के लिए. The permanent members are, so the permanent members of the Security Council are USA, Russia, Britain, France and China. So Britain, France, China, USA and Russia are the 5 permanent members of the Security Council. These 5 members enjoy special powers known as veto powers. तो इन 5 permanent members के पास एक special power होता है जिसे कि veto power कहते हैं. This means that any decision can be taken by the Security Council can be objected by anyone or all of them. In case of objection, the decision cannot be implemented. So veto power का मतलब ये होता है कि अगर Security Council कोई भी decision लेती है, और ये जो 5 जो permanent members है,
ये पांचों परमानेंट मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है कि उनके पास इतना पावर होता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की किसी भी डिसीजन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी डिसीजन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स ने सिक्योरिटी काउंसिल की किसी डिसीजन पे अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज योर secretariat. The Secretariat is the executive branch of the United Nations. It is the organ that carries out the day-to-day administration of the United Nations. So Secretariat का ये काम होता है कि United Nations का जो हर रोज़ जो काम होता है यूनाइटेड नेशन में, उन सभी डे टू डे जो उनका वर्क होता है, उन सभी कामों की देखभाल करने का काम जो है वो सेक्रेटेरिएट का होता है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द यूएन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। तो यूनाइटेड नेशंस जितनी भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उन सभी की देखभाल करना भी द सेक्रेटेरिएट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर आर मोर देन 4000 पीपल हु वर्क इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूएन। तो यूएन के सेक्रेटेरिएट में 4000 से भी ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो 4000 से भी ज़्यादा लोग होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेक्रेटेरिएट। तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो जो है सेक्रेटेरिएट में जो भी काम होता है, वहाँ के लोग जो भी काम करते हैं, उन सभी कामों को जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सुपरवाइज़ करता है, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट में जितने भी काम होते हैं उन कामों को सुपरवाइज़ करने का काम जो है सेक्रेटरी जनरल का होता है। ही इज़ ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो सेक्रेटेरिएट होता है वो यूनाइटेड नेशंस का स्पोक्स पर्सन भी होता है। ही इज़ नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो सेक्रेटेरिएट को नॉमिनेट करती है, और जो जनरल असेंबली होती है वो सेक्रेटेरिएट को अपॉइंट करती है। ओके, सो जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो सेक्रेटेरिएट को नॉमिनेट करती है, और जो जनरल असेंबली होती है उसमें सेक्रेटेरिएट को अपॉइंट करता है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो किसी भी सेक्रेटेरिएट को 5 years के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट आर इन न्यूयॉर्क। तो सेक्रेटेरिएट का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। Next is your Economic and Social Council. So this organ coordinates the economic and the social activities of the United Nations. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम ये होता है कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं यूएन के, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़, ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों की देखभाल करने का काम वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है। दिस ऑर्गन लुक्स आफ्टर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, इलिटरेट, सिक एंड हंग्री पीपल। तो ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये ऐसे नेशंस की देखभाल करता है जहाँ के लोग जो है गरीब होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, वहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, लोग भूखे मर रहे होते हैं, लोग बीमारी से मर रहे होते हैं, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इन सब इश्यूज़ की देखभाल करने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है। Next is your Trusteeship Council. This organ was established to help the countries which were struggling to gain independence. Today this organ is not functional as all the countries are free. Trusteeship Council का काम ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक गुलाम हैं, जो आज़ाद नहीं हो पाए हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाया है, तो ऐसे कंट्रीज़ को जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने में उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, उनका कोऑपरेट करना, ये काम जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल का होता है। लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो ऑर्गन है वो अभी फंक्शनल नहीं है। अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल बिल्कुल भी ये जो ऑर्गन है अब वो नॉन फंक्शनल, मतलब वो फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि आज जो है जितनी भी कंट्रीज़ है, जितने भी नेशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो फ्री हो चुके हैं। तो अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. This court advises the nations on matters of international law. So law और legal matters, international legal matters, international law से related जो matters होते हैं
उनकी देखभाल करने का काम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है. It is the judicial organ of the United Nations. It consists of 15 judges who are elected by the General Assembly and the Security Council for a term of 5 years. Okay. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस ही होते हैं. ठीक है, सिर्फ 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. और इन 15 जजेस को जो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये दोनों मिलकर उन 15 जजेस को अपॉइंट करते हैं सिर्फ 9 ईयर्स के लिए. ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ 15 जजेस होते हैं और उन 15 जजेस को जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये दोनों मिलकर उन 15 जजेस को 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं. इट ऑल्सो सॉल्व्स द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज. तो कंट्रीज़ के बीच अगर कोई लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लीगल डिस्प्यूट्स हैं, तो ऐसे इश्यूज़ को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही सॉल्व करता है. इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट हेग इन नीदरलैंड्स. तो नीदरलैंड्स के हेग में इनका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट इज योर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म्स सेवरल ड्यूटीज. इट हैज़ सेट अप सेवरल एजेंसीज टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. सो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे कई तरह के ड्यूटीज़ होते हैं. तो अपना काम आसान करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अलग अलग एजेंसीज़ बना ली हैं जो कि अलग अलग कामों की देखभाल करते हैं. सो सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट वन इज़ यूनिसेफ. ओके, so the full form of UNICEF is United Nations Children's Fund. It mainly works for the children who are poor and backward. So UNICEF का काम होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड होते हैं, बहुत ही पिछड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चों की देखभाल करने का काम यूनिसेफ का होता है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल द डिजीज़ेस अमंग द चिल्ड्रन. बच्चों में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उस बीमारी को कंट्रोल करने का काम भी यूनिसेफ का होता है. इट ऑल्सो टेक्स इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन. तो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पैसों की वजह से इलिटरेट रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूनिसेफ की ही होती है. एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क. तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है. नेक्स्ट इज़ योर WHO. सो द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो WHO हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो WHO जो है वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ पे काम करने का काम जो है वो WHO का होता है. इट हेल्प्स मेंबर कंट्रीज़ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ेस. जो सेवरल जो डिजीज़ेस होते हैं उन डिजीज़ेस के ख़िलाफ़ लड़ने में कंट्रीज़ को हेल्प करना, उन डिजीज़ेस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दूसरे नेशंस की हेल्प करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO की होती है. मैनी डेडली डिजीज़ेस हैव बीन वाइप्ड आउट थ्रू इट्स एफर्ट्स. WHO की हेल्प से बहुत ही डेंजरस डेडली डिजीज़ेस जो है वो इरेडिकेट किए जा चुके हैं, वो ख़त्म किए जा चुके हैं. द WHO ऑल्सो हेल्प्स द कंट्रीज़ टू कंट्रोल एपिडेमिक्स. जो महामारी, जो पैंडमिक्स, जो एपिडेमिक्स ये सब होते हैं, तो इन सब के ख़िलाफ़ लड़ने में भी WHO काफ़ी कोऑपरेट करता है. मैनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय WHO. WHO ने बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं. एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा. और इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है. नेक्स्ट इज़ योर ILO. सो द फुल फॉर्म ऑफ ILO इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन and it is an agency of the UN that helps the nations to improve the working condition of the workers. तो ILO का काम ये है कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो हक है, तो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब के लिए उन सब की देखभाल करने का काम. So international labor organization helps to improve the conditions of the laborers and workers. So ILO का काम होता है जो different countries में जो laborers हैं, workers हैं, उनकी condition को improve करना. Okay, so they help to improve the living conditions of the workers and the laborers across the world. It tries to solve the labor problems between the government and the employees. So government जो laborers का जो laborers और government के बीच जो issues होते हैं, ऐसे issues को settle करने का काम वो ILO का होता है. It promotes job opportunities for men and women. और men and women के लिए
अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना भी ILO का काम होता है. नेक्स्ट इज़ योर यूनेस्को. द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन रिमूविंग इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड. तो यूनेस्को का काम होता है कि वर्ल्ड्स में जो इलिटरेसी है, मीन्स जो लोग जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो द यूनेस्को वॉन्ट्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड. ओके, जो बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं, जो एजुकेशन नहीं ले पाते, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने का काम वो यूनेस्को करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर. तो जो पुराने जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, सो एज जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, तो ऐसे जगहों को प्रिजर्व करके रखना ये काम यूनेस्को का होता है. इट encourages द नेशंस टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. तो ये बाकी दूसरे नेशंस को भी encourage करता है ताकि सभी साथ में मिल कर के एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट कर सके. इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स. ये ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का काम भी करता है. एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस. तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज FAO. The full form of FAO is Food and Agricultural Organization. So it aims at freedom from hunger. तो FAO का काम ये होता है कि to get freedom from hunger, यानी कि जो लोगों को जो लोग बहुत गरीब होते हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को फूड प्रोवाइड करना, उनकी डेली नीड्स का ध्यान रखना, ये काम FAO का होता है. ओके, सो FAO it wants it helps to its main aim is to eradicate the hunger in different nations. तो अलग अलग लोगों में जो लोग गरीबी की वजह से भूखे रह जाते हैं, खाने नहीं मिलते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए FAO जो है वो काफ़ी सारे काम करते हैं. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू एवरीवन. FAO चाहता है कि हर किसी को खाना मिले, कोई भी भूखे पेट ना सोए. इट प्रोवाइड्स बेटर सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मेडिसिन्स अगेंस्ट डिजीजेस, क्रॉप कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO इज़ एट रोम. तो इट प्रोवाइड्स बेटर सीड्स. जो FAO होता है, इसका काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, फूड से रिलेटेड इश्यूज़ तो होते ही हैं. द मेन एम ऑफ द FAO इज़ टू इरेडिकेट हंगर एंड टू प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन. तो FAO का मेन काम होता है कि वो हर किसी को खाना, मतलब FAO का मेन एम ये है, उनका ये कहना है कि कोई भी भूखे पेट ना सोए और हर किसी को खाना मिले. और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उनकी देखभाल करने का काम भी FAO का है. और FAO जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि फार्मिंग के लिए बेटर सीड्स, बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करते हैं. इरिगेशन के बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है. किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ बेटर मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं. फिर क्रॉप कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़, यानी कि जो फसल होती है, तो उस फसल अच्छी क्वालिटी की फसल हो, क्रॉप्स हो, इसका भी ध्यान रखना FAO के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO इज़ एट रोम. इनका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है. नाउ अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैव बीन पीसफुली सॉल्व्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द UN. यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको उन्होंने सक्सेसफुली सेटल किया है. सो फार इट हैज़ एफर्टेड द थर्ड वर्ल्ड वॉर. अब तक यूनाइटेड नेशंस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक रखा है. इट हैज़ प्रिवेंटेड द यूज़ ऑफ एटमिक एंड अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. एटमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ पे भी इन्होंने रोक लगा दी है. इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग हेल्प टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी. तो यूनाइटेड नेशंस ने सक्सेसफुली बहुत सारे इश्यूज़ पे काम किया है और उन्हें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हो या डिजीज़ या फिर इलिटरेसी हो. The next is the efforts of its specialized agencies have benefited millions of people all over the world. और उनके जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. Points to remember. The organs of the United Nations are the General Assembly, Security Council, Secretariat, Economic and Social Council, Trusteeship Council and the International Court of Justice. So these are the various organs of the United Nations. General Assembly is an international parliament. General Assembly को जो है international parliament भी कहा जाता है. The Security Council is the most powerful organ of the United Nations.
जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है ये यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का ही ये काम होता है कि वो डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज़ के बीच एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन करके रखे। द सेक्रेटरी क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम होता है कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन करके रखें। इस चीज़ की देखभाल करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का ही होता है। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर यूनिसेफ, WHO, ILO, UNESCO and FAO. So these five are the most specialized agencies of the United Nations. The United Nations has many achievements to its credit. तो United Nations ने अब तक बहुत सारे achievements किए हैं. Okay, so you also read this chapter once again so that you can understand it more clearly.